happens in? First question is glycolysis happens in. Glycolysis happens in. Gaurav has answered, Ananya has answered. Both your answers are incorrect. Sarthi, your answer is correct. Very well done. Well done, Sarthi. What about others? Keep on replying, students. Rishu, your answer is correct. Well done, Rishu. Ananya, your answer is correct. Vaibhavi, answer is correct. Aman, answer correct hai. Ashish Gupta, answer correct hai. Nisha, your answer is correct. Krish Patel, your answer is correct. Rutvik, your answer is correct. Riya Patil, Shabash, well done. Students, you have to message me directly, okay? You have to send me direct message. Do not message to everyone. Everyone वाला option आपको use नहीं करना है. I have switched on that option so that I can view all the answers sent by you people through my laptop. Okay? Chalo. Riya Patil, your answer is correct. What about others? Students, quickly reply me. Quickly reply करो मुझे. बाकी लोग. Send me your answers, students. Send me your answers. Okay. Very good, Abhijit. Nitin Dubey. Shabash. Okay, students. So I'll go ahead with the answer. Answer is A, cytoplasm. Answer is A, cytoplasm. Now, all of them who have replied with B, mitochondria, you have to understand that glycolysis happens in the cytoplasm of cell. Once glycolysis is over, students, you get pyruvic acid. Acetyl coenzyme का हमको बाद में story पढ़ना है. Pyruvic acid, once we get this pyruvic acid, or I should say 2 molecules of pyruvic acid we receive, and both these molecules of pyruvic acid are converted to acetyl coenzyme A, and thereafter I will see Krebs cycle or TCA which happens inside the mitochondria. और उसके बाद मुझे ETC pathway दिखेगा. So mitochondrial matrix में entry कब होगी? When we are into Krebs cycle. When I'm speaking about glycolysis, you have to be in cytoplasm only. Okay, students, it has to be in cytoplasm. Anaerobic phase of respiration. Anaerobic phase of respiration. है ना? Anybody has any kind of doubt? You can message me immediately, students. You can message me immediately. ठीक है, आपको अगर कोई भी डाउट है, you can message me. I can see your messages. चलो, should I go on to the next question, students? Let's go on to the next question. Dash is not formed in TCA cycle. Send me your answers quickly. Dash is not formed in TCA cycle. Yes, Ananya, very good. Nitin Dubey, your answer is correct. Students, please message me directly. Take care. Use direct option. You can mark my. You can click on my name and then you can message me. Okay. I have logged into this lecture by 2 accounts. So जो host है उस पे ना जाके दूसरा वाला जो है, मेरा नाम प्रीतेश मिश्रा आपको नीचे भी दिखेगा. सो वहां पे क्लिक करके सेकंड वाले नेम पे क्लिक करके आपको मुझे मैसेज करना है, सो दैट आई कैन व्यू योर मैसेज डायरेक्टली ओवर हियर ऑन द लैपटॉप स्क्रीन. नितिन दुबे करेक्ट आंसर है. निशा योर आंसर इज करेक्ट. सारथी योर आंसर इज करेक्ट. अमन योर आंसर इज करेक्ट. Ananya, okay, what is the option? I'm so sorry. Now I'm sure you'll be able to view this. Premraj, your answer is correct. Option D is ATP, students. Chalo, others, what about others? What about others? Dash is not formed in TCA cycle. What is the full form of TCA cycle, students? Tricarboxylic acid cycle. है ना? Full form क्या है? Tricarboxylic acid cycle, also known as Krebs cycle. Also known as Krebs cycle. No, Abhijit, that is wrong answer. Satyam Soni, your answer is absolutely correct. Satyam Soni, answer is correct. Ananya, answer is correct. Noshin, your answer is correct. Rishu, your answer is correct. Well done, Rishu. Gaurav, your answer is correct. Satyam Soni, Abhijit, yes. Shabash. Chalo, students. So answer for this is O2. Dash is not formed in TCA cycle. Krebs cycles में कौन सी चीजें नहीं बनती हैं? NADH2 नहीं बनता है, रॉन्ग. NADH2 बनता है, स्टूडेंट्स. कहाँ बनता है? 3 जगह बनेगा, 3 जगह. ठीक है, आपको मैं ये 11th स्टैंडर्ड में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर में सिखाऊंगा. ठीक है, आई एम श्योर मेनी ऑफ यू ओवर हियर आई कैन सी द नेम्स फॉर ऑलरेडी विद अस इन कैश 25 साइंस एकेडमी. और कुछ नहीं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो ऑलरेडी कैश 25 साइंस एकेडमी के साथ रजिस्टर नहीं किए हैं. So all of you who are going to register and all of you जिन्होंने already register कर दिया है एडमिशन हमारे साथ, उन सबको मैं ये 11th स्टैंडर्ड में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर में सिखाऊंगा कि where all NADH2 which are the steps wherein I will get NADH2 in Krebs cycle. ठीक है, मस्त एक स्टोरी है, वो स्टोरी भी आपको बताऊंगा. उस स्टोरी के हेल्प से आपको पूरा का पूरा पाथवे लर्न हो जाएगा.
ओके स्टूडेंट्स, दैट इज माय गारंटी। पूरा का पूरा पाथवे लर्न हो जाएगा और हमारे स्टूडेंट्स को हार्डली 1.5 मिनट में बोल डालते हैं पूरा पाथवे, पूरा का पूरा पाथवे 1.5 3 मिनट्स के अंदर, ऑल 10 स्टेप्स विथ रिएक्टेंट्स, विथ प्रोडक्ट्स, विथ रिएजेंट्स, एवरीथिंग। ओके, सो इसका आंसर होगा NADH2 बनता है स्टूडेंट्स, FADH2 भी बनता है, ATP भी बनता है। ATP जिस स्टेप पे बनता है उस स्टेप को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ओके, सो बी इज द आंसर, बी नहीं बनता। ओके स्टूडेंट्स, बी इज नॉट प्रोड्यूस्ड। ऑक्सीजन अगर प्रोड्यूस होने लगा आपके सेल में, अगर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने लगा आपके सेल में, तो आपको सांस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। चलो, I'll go to next question students. Next question is basic units of proteins are, that is the basic unit of protein. Send me your answer students. Yes Anand, Pankaj Pal, keep on replying students. Basic unit of protein is, basic unit of protein is, basic unit of protein students. Yes, send me your answers, send me your answers. शाबाश अनन्या, तिशा, नितिन दुबे, गौरव, अमन दुबे, अमन दुबल, सॉरी अमन दुबल, सार्थिक, वेल डन, वेल डन, शाबाश। अमन, अमन योर आंसर इज रॉन्ग, आई एम सो सॉरी, योर आंसर इज रॉन्ग। रिशु, योर आंसर इज रॉन्ग। सृष्टि राणे, योर आंसर इज करेक्ट। स्टूडेंट्स प्लीज मेक श्योर योर माइक इज ऑन म्यूट, मेक श्योर योर माइक इज ऑन म्यूट। ओके, माइक को म्यूट कर लो प्लीज। यस रिशु, शाबाश। रिशु वापस एक बार सोचो, क्वेश्चन को वापस एक बार सोचो। सृष्टि रानी और आंसर इज करेक्ट, अनन्या आंसर इज करेक्ट, ऋत्विक आंसर करेक्ट है, निशा आंसर करेक्ट है, वैभव जैन आंसर करेक्ट है, नौशीन आंसर करेक्ट है, प्रेमराज रॉन्ग आंसर, वैभवी नाइक करेक्ट आंसर, अमन दुबल दिस इज रॉन्ग आंसर, अमन, अरुणा योर आंसर इज करेक्ट, प्रीत डोलास आंसर इज करेक्ट, रिशु नाउ योर आंसर इज करेक्ट, वेल डन रिशु, नाउ योर आंसर इज करेक्ट, बी इज राइट आंसर रिशु, B option is correct students, B वाला option correct है, why? Because amino acids, to be very specific, alpha amino acids are the basic unit of proteins. ठीक है, प्रोटीन्स को अगर मैं ब्रेक करूं तो सबसे बेसिक मॉलिक्यूल मुझे क्या मिल जाएगा, अमाइनो एसिड्स मिल जाएंगे स्टूडेंट्स, है ना। अगर मैं लिपिड्स को ब्रेक करता हूं तो मुझे मिलता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अगर मैं न्यूक्लिक एसिड्स को ब्रेक करता हूं तो मुझे मिलेगा न्यूक्लियोटाइड, है ना। उसको आप ज्यादा ब्रेक करोगे तो आपको मिल जाएगा न्यूक्लियोसाइड। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक करते हो तो आपको मिलता है सिंपल बेसिक कंपाउंड जिसको अपन बोलते हैं मोनोसैकेराइड। सबसे कॉमन मोनोसैकेराइड कौन सा है, ग्लूकोज, है ना स्टूडेंट्स। सो ग्लूकोज कब मिलेगा, डी वाला ऑप्शन आपको कब मिलेगा, जब मैंने बोला होता कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट बताओ, राइट। देन अगर मैंने बोला होता कि लिपिड्स का बेसिक यूनिट आप बता दो तो आप बोलते फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैंने बोला कि मोनोमर्स के पॉली यूनिट्स कौन से हैं, सो आप बोलोगे पॉलीमर, तो ए वाला तो ऑप्शन आसपास भी नहीं है। सी एंड डी आर मोनो, दे आर बेसिक यूनिट्स, बट दूसरे बायोमोलिक्यूल्स के बेसिक यूनिट्स हैं। ओके, मे बी आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए कि डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपका आंसर होना चाहिए डी। डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिपिड्स, तो आपका आंसर होना चाहिए फैटी एसिड्स, ऑन ऑप्शन सी। बट उसमें ग्लिसरॉल को भी आपको ऐड करना पड़ जाएगा, ठीक है, इनकम्प्लीट ऑप्शन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर प्रोटीन्स। जो लोग ने, जो आईसीएससी बैच, सपोज आपने आईसीएससी बुक्स या एसएससी में भी अगर आपके टीचर्स ने आपको डिटेल में पढ़ाया होगा तो उन्होंने जरूर बोला होगा कि इट इज अल्फा अमाइनो एसिड्स, नॉट जस्ट अमाइनो एसिड्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्फा क्यों, बिकॉज अल्फा कार्बन पे अमाइनो ग्रुप अटैच्ड होता है। अल्फा कार्बन कौन सा है, अगर आपने मेरे फाउंडेशन बैचेस बैठे हैं तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि फंक्शनल ग्रुप के बाद वाला जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, followed by beta, followed by gamma, delta, and so on. Okay, so alpha amino acids, there is a nice concept behind this alpha amino acids. But yes, बहुत लोग ये use नहीं करते alpha, no problem at all. Amino acids is more than enough. Next, insulin hormone is dash in nature. Insulin hormone कौन से बायोमोलिक्यूल से बनता है, इसके मुझे आंसर्स दे दो स्टूडेंट्स। Insulin hormone is dash in nature. आपको आंसर्स तभी बोलना है जब मैं क्वेश्चंस स्टूडेंट्स रीड आउट करूं, ठीक है। उसके पहले अगर आप आंसर दोगे तो मैं आपके आंसर्स नहीं देख पाऊंगा, ठीक है, बिकॉज व्हाइल आई एम इन डिस्कशन मैं चैट बॉक्स नहीं देखूंगा। सो अब आपको मुझे आंसर्स देने हैं, चलो फटाफट से आंसर्स भेज दो। इंसुलिन हार्मोन इज डैश इन नेचर स्टूडेंट्स, इंसुलिन हार्मोन इज डैश इन नेचर। सारथी राइट आंसर, अनन्या राइट आंसर, वेरी गुड, शाबाश। नौशीन राइट आंसर, वैभव जैन राइट आंसर है आपका। अदर्स प्लीज रिप्लाई, वापस से आपके आंसर्स भेज दो स्टूडेंट्स। क्रिश करेक्ट आंसर है, अरुणा राइट आंसर, अमन रॉन्ग आंसर है, निशा रॉन्ग आंसर है। इंसुलिन हार्मोन इज डैश इन नेचर, insulin hormone is dash in nature students. Is it carbohydrate in nature? Yes Rutvik, very good answer. Is it lipid in nature students?
इज इट प्रोटीन इन नेचर, इज इट न्यूक्लिक एसिड इन नेचर, आपको बायोमोलिक्यूल्स पता लगाने हैं। गौरव रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर। सो स्टूडेंट्स इंसुलिन इज प्रोटीन इन नेचर। ये आपको कहां मिलेगा? आपके टेक्स्ट बुक में। वेरी गुड अमन। आपके टेक्स्ट बुक में एक इमेज दिया है, सर्कुलर इमेज प्रोटीन सेक्शन में, एंड उसमें दिया गया कि प्रोटीन क्या क्या चीजें में हेल्प करते हैं हमको। सो बोन्स में हेल्प करते हैं, प्रोटीन्स हार्मोन्स में हेल्प करते हैं, प्रोटीन्स और क्या क्या चीजें बनाने में हेल्प करते हैं। सो बड़ा सा एक फ्लो चार्ट दिया है सर्कुलर, जिसके अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल्स आपको रिलीज हो जाएंगे, मिल जाएंगे। सो वहां से मैंने ये क्वेश्चन पिक किया था। इफ यू वांट I can also tell you the page number, students. So page number कौन सा है? Page number you can note down आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 16 students. पेज नंबर 16 you can go and read. पेज नंबर 16 पे एक चार्ट दिया है, सर्कुलर चार्ट, चेक करो स्टूडेंट्स। वहां पे जो नीचे वाला राइट हैंड साइड जो सर्कल है, वहां पे they have written pancreas, insulin, trypsin. So that is where I have picked this question from. Okay students, वहीं से मैंने ये क्वेश्चंस पिक किए हैं, ये वाला क्वेश्चन स्पेशली। ठीक है, सो एवरीथिंग इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, एवरीथिंग इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक स्टूडेंट्स, कुछ भी यहाँ वहां से नहीं लिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाऊं मैं। शुड आई गो हेड स्टूडेंट्स, शुड आई गो हेड? चलो राइट राइट राइट, नेक्स्ट। सो इसका आंसर क्या है? आंसर है बी, इट इज प्रोटीन इन नेचर। आई विल गो हेड। वेरी गुड अनन्या, शाबाश। डैश इज नॉट अ फैट सोल्यूबल विटामिन, dash is not a fat soluble vitamin. Yes Shreyash, this video will go on YouTube, definitely it will go on YouTube. ठीक है, चलो स्टूडेंट्स बताओ मुझे, dash is not a fat soluble vitamin. Send me your answers quickly, send me your answers students. प्रेमराज राइट आंसर, सृष्टि रानी राइट आंसर, सृष्टि रानी आपका आंसर करेक्ट है, प्रेमराज आंसर करेक्ट है, अरुणा आंसर करेक्ट है, सारथी आंसर इज रॉन्ग, अनन्या योर आंसर इज रॉन्ग। ओके, बहुत सारे आंसर्स आ गए हैं अभी। रिशु आंसर करेक्ट, नौशीन आंसर करेक्ट है, गौरव आंसर करेक्ट है, कृष पटेल योर आंसर इज करेक्ट, वैभवी योर आंसर इज सॉरी, हाँ वैभवी नाइक आंसर करेक्ट है, वैभव जैन योर आंसर इज करेक्ट, रिया पाटिल आंसर करेक्ट है, पंकज पाल आंसर करेक्ट है, सारथी योर आंसर करेक्ट नाउ, अमन दुबल योर आंसर इज रॉन्ग, नितिन दुबे आंसर करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स आंसर इज डी, dash is not a fat soluble vitamin, dash is not आपको नॉट पे फोकस करना है। जैसे आपको क्वेश्चंस में नॉट दिखे, एनसर्कल कर लो, ध्यान वहीं लगा दो। ठीक है स्टूडेंट्स, उस पर ध्यान लगा के चेक करो कि अगर नॉट दिया है मतलब इनमें से कौन सा फैट सोल्यूबल नहीं है। सो फैट सोल्यूबल का एग्जांपल्स वापस से रीड आउट कर लो, याद कर लो। फैट सोल्यूबल में कौन से आते हैं स्टूडेंट्स? ADEK, 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 ABC ऑप्शन हट गया, देखो AKE, ये सारे के सारे फैट सोल्यूबल हैं। एक ही वाटर सोल्यूबल यहाँ पे दिख रहा है मुझे, विटामिन सी। एंड ओवरऑल अगर चेक करें स्टूडेंट्स, सो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, बोथ ऑफ देम आर वाटर सोल्यूबल। सो यहाँ पे आंसर आएगा डी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आपके आंसर्स आप अब भेज सकते हो, आपके आंसर्स। क्रोमोसोम नंबर रिड्यूसेस टू हाफ इन डैश डिवीजन, कौन से डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है? चलो स्टूडेंट्स क्विकली सेंड मी योर आंसर्स, क्विकली सेंड मी योर आंसर्स। कृष पटेल आंसर करेक्ट है, नौशीन आंसर इज करेक्ट, वैभव जैन आंसर करेक्ट है, गौरव आंसर करेक्ट है, ऋत्विक आंसर करेक्ट है, प्रीति और आंसर इज करेक्ट, अनन्या आंसर इज करेक्ट। वेल डन अनन्या, वेल डन अनन्या। चलो स्टूडेंट्स क्विकली keep on sending me your answers, keep on sending me your answers students. Sarthi your answer is correct, very well done, very well done. Aman your answer is wrong, डबल नहीं करना है अमन, हाफ कर देना है, हाफ। ठीक है, हाफ कब हो जाएगा? yes students, keep on replying, keep on replying. वैभवी yes surely answer is correct, वैभवी आंसर आपका करेक्ट है। अमन अब आपका आंसर करेक्ट है। सो स्टूडेंट्स आंसर क्या है? आंसर इज मियोसिस, आंसर इज मियोसिस। मियोसिस इज नोन एज रिडक्शन डिवीजन। हमारे बॉडी में मियोसिस कब होता है? सूजल घुगे, आंसर इज करेक्ट। ठीक है, हमारे बॉडी में मियोसिस कब होगा स्टूडेंट्स? जब गैमीट्स फॉर्मेशन होते हैं, जब स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ मेल, व्हेन फीमेल के केस में ओवम का फॉर्मेशन होता है। इन दीज टू केसेस ओनली मियोसिस विल हैपन, एंड जैसे ही मियोसिस होगा क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। इज देयर एनी रीजन फॉर इट? Yes, definitely there is a reason. There is very valid point over here, students. Because we say that sperm plus ovum will give me zygote, है ना? Sperm plus ovum मिलके मुझे zygote देते हैं। तो अगर स्पर्म के पास हाफ क्रोमोसोम रहेगा,
ओवम के पास हाफ क्रोमोसोम रहेगा, जब ये लोग मिल जाएंगे तो फुल कंप्लीट सेट प्रेजेंट हो जाएगा उस बेबी में, करेक्ट स्टूडेंट्स, उस फीटस में आई शुड से। So therefore fertilization होने की हमको पता है fertilization होने वाला है, we very well know that sperm and ovum are going to get united and therefore we will provide them just with half number of chromosomes. Okay students, 23 chromosomes will provide each one of them and therefore when they fertilize, zygote जो form होता है it will contain 23 pairs of chromosomes which is the normal count, euploidy condition। ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, यूप्लॉइडी कंडीशन, जहां पे क्रोमोसोम नंबर जितना होना चाहिए उतना एग्जैक्ट अगर है तो हम ऐसे कंडीशंस को बोलते हैं यूप्लॉइडी। ये कंसेप्ट आप पढ़ोगे 11th स्टैंडर्ड सेल डिवीजन चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, चलो शुड आई गो अहेड, आगे चले जाऊं मैं। नेक्स्ट, प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी इज डैश परसेंटेज। प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी इज डैश परसेंटेज। सेंड मी योर आंसर स्टूडेंट्स। वेरी गुड सुजल, अनन्या, सुजल घुगे, प्रेमराज, सारथी, वेरी वेल डन सारथी, वैभवी नाइक, अमन दुबल, सबके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं। अरुणा आंसर करेक्ट है, अभिजीत आंसर करेक्ट है, वेरी गुड, नॉट इवन अ सिंगल रॉन्ग आंसर। नितिन दुबे, ऋषु, वेरी गुड अभिजीत, ऋषु करेक्ट है, शाबाश नितिन। पंकज पाल, गौरव मलोरे, फर्स्ट इनकरेक्ट आंसर फ्रॉम गौरव। गौरव आपका आंसर रॉन्ग है। प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी इज 60 to 70% students, 60 to 70%. This is straight away from your textbook. आपके टेक्स्ट बुक से एक क्वेश्चन मैंने पिक किया है, अगर आपने टेक्स्ट बुक रीडिंग ठीक से की है आपको इसका आंसर डेफिनेटली आना चाहिए था। कृष पटेल, योर आंसर इज करेक्ट। वैभव जैन, आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, सो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन कहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे आपको ध्यान देना, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो यू हैव टू फोकस प्रॉपर्ली कि पूछा क्या है, प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, ना कि प्लाज्मा, है ना। सबका ध्यान कहाँ गया, मेजोरिटी ऑफ मिस्टेक्स जो हुए हैं सबने सी मार्क किया है। सी मार्क क्यों किया, 90%, 90 देखते ही मार्क कर दिया, वाटर सुना 90 देखा मार्क कर दिया। बट यू हैव टू प्रॉपर्ली सी कि हमने पूछा किस में है, बॉडी में पूछा है कि प्लाज्मा में पूछा है, कहाँ पूछा है, एंड सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू आंसर। आई हैव आस्क्ड यू इन ह्यूमन बॉडी, अगर ह्यूमन बॉडी 90% वाटर होता तो कुछ और किस्सा होता स्टूडेंट्स। ओके, ह्यूमन बॉडी इज ओनली 60 to 70% वाटर, ब्लड प्लाज्मा इज डेफिनेटली 90% वाटर। ओके वैभव जैन, इज दैट अंडरस्टूड? गौरव, इज दैट अंडरस्टूड? हैव यू रियलाइज्ड द मिस्टेक? यस गौरव, शाबाश, वेल डन, वेल डन। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट्स, yes Vaibhav, very good. Next question पे जाते हैं students. Next question is 2 grams of lipids will give dash kilocalories of energy. 2 grams, focus on 2 grams. Ananya, very well done Ananya, that is right answer. Ananya, your answer is correct. And देखो कृष पटेल, अरुणा wrong answer के शिकार हो गए हैं। सारथी, your answer is correct. प्रेमराज, answer is correct. अमन दुबल, answer is correct. स्टूडेंट्स जिन्होंने टेक्स्ट बुक देख के सीधा आंसर मार्क कर दिया उनके आंसर यहाँ पे रॉन्ग जा रहे हैं, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सुजल, आंसर रॉन्ग है। 2 grams of lipids will give me, बहुत लोगों ने बी मार्क किया है स्टूडेंट्स, एंड इफ यू हैव मार्क्ड बी योर आंसर इज रॉन्ग। इफ यू हैव मार्क्ड बी योर आंसर इज रॉन्ग। साइंस टेक्स्ट बुक में आपको स्टेटमेंट दिया गया है कि एवरी ग्राम ऑफ लिपिड इज गोइंग टू गिव यू 9 kilocalories of energy per gram, 9 kilocalories. Over here I've asked you 2 grams of lipid. 2 grams of lipid कितना देंगे? नौशीन, शाबाश, गौरव, पंकज पाल, अरुणा, your answer is correct now. ऋत्विक, नितिन दुबे, आंसर करेक्ट है ना स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? जब मैं 2 ग्राम्स पूछ रहा हूँ तो 1 ग्राम अगर देता है 9 किलो कैलोरीज, 2 ग्राम्स कितना देगा? क्या बात है नितिन, शाबाश, 2 ग्राम्स देगा 18 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। यस कृष पटेल, सिंपल स्टूडेंट्स, सिंपल है। मजा आ रहा है क्वेश्चंस में? मजा आ रहा है? बताओ मुझे, मजा आ रहा है क्वेश्चंस में? कैसा लग रहा है? रिवीजन हो रहा है? रिवीजन हो रहा है, दैट इज द मेन मोटिव, है ना। ऐसे क्वेश्चंस वो सारे सेक्शन से पिक किए हैं मैंने जिससे आपको लगे कि आपका चैप्टर वापस से रिवाइज हो गया। इफ यू हैव रिवाइज्ड द चैप्टर नाइसली you'll be marking each and every question, trust me. ठीक है, but if in case you have revised it superficially you won't be able to answer this. Okay students, and all these questions I have not picked any question from anywhere, ये सारे questions मैंने खुद बना के आपके लिए रेडी किया है। ठीक है, so ये सारे questions आप बहुत सिंपली आप खुद से बना सकते हो। questions students, questions you can make by yourself. कैसे बना सकते हो? अगर आपने बुक रीडिंग की है so आप खुद से 3-4 questions बनाओ, उनके ऑप्शंस क्रिएट करो, 4-4 ऑप्शंस, एंड आप आपस में फ्रेंड्स के साथ शेयर करो।
सपोज फॉर एग्जाम्पल कृष्ण ने क्वेश्चंस बनाए, कृष्ण अपने 4 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस शेयर करेगा प्रेमराज के साथ, प्रेमराज उसको अपने 5 क्वेश्चंस शेयर करेगा. सो इस हिसाब से स्टूडेंट्स लाइक दिस एवरी चैप्टर इफ यू कैन मेक 10 क्वेश्चंस, पूरे चैप्टर को देखने का, खाली एक पेज से 10 नहीं. ओके, आई कैन मेक 150 क्वेश्चंस फ्रॉम योर एंटायर चैप्टर. एक पेज से आई कैन मेक एटलीस्ट 80 क्वेश्चंस तो आराम से बना दूंगा. तो पूरे चैप्टर सोचो मैं कितना बना सकता हूँ. बट दैट इज एज अ टीचर फ्रॉम माय साइड. एज अ स्टूडेंट आपके ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, आप हार्डली 5 to 10 क्वेश्चंस बना पाओगे, है ना. सो ना ही केस स्टडी बना पाते हो, केस स्टडी बेसिस पे आप नहीं बना पाओगे, एग्जाम्पल बेसिस पे आप बना सकते हो, है ना. विच इज करेक्ट विच इज इनकरेक्ट, ऐसे भी अपन स्टेटमेंट्स मॉडिफाई कर सकते हैं. तो बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चंस बनाने के. आप सिंपल सिंपल तरीके से क्वेश्चंस बनाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. ऑल्सो आस्क देम टू शेयर देयर क्वेश्चंस. इससे क्या होगा, आपका समझ में आएगा आपको कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं. सो वंस यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, वंस यू स्टार्ट मेकिंग क्वेश्चंस, डेफिनेटली आप क्वेश्चन पेपर में, एक्चुअल क्वेश्चन पेपर में बेटर परफॉर्म करोगे, बिकॉज आप क्वेश्चन पेपर सेटर के शूज में जाके उसके दिमाग से सोच रहे हो. यू आर, बोलते ना वो इंग्लिश में, यू आर एंटरिंग हिज शूज. और उसका शूज में आप जाके सोच रहे हो, उसके शूज में आपने पैर डाल लिया, तो आप उस पर्सन के बदले सोच रहे हो, वैसा कुछ सोच रहे हो, तो आपका थिंकिंग भी वैसे मैच करने लगेगा. ओके, चलो लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन इंक्लूड्स, एनारोबिक रेस्पिरेशन इंक्लूड्स, ऑप्शंस हैं आपके लिए, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, फर्मेंटेशन, बोथ ए एंड सी, both A and C. Nitin Dubey answer is wrong. Sarthi answer is correct. अब तक 2 ही आंसर्स आए हैं. Ananya, well done. Your answer is correct, Ananya. Your answer is correct, Ananya. I can't remember कि अनन्या का कौन सा आंसर रॉन्ग गया है. आई थिंक सारे आंसर्स करेक्ट गए हैं अब तक. Yes, Aman, that is wrong answer. गौरव आपका आंसर रॉन्ग है. आकांक्षा, your answer is correct. Well done, Akanksha. Well done, Akanksha. Archita and Soham answers are correct. वैभवी नाइक आंसर करेक्ट है. सुजल, सुजल आंसर इज रॉन्ग. अमन दुबे आंसर इज करेक्ट. कृष पटेल आंसर इज करेक्ट. अभिजीत पंकज पाल आंसर करेक्ट है. नितिन दुबे आंसर करेक्ट है. गौरव मनोरे आंसर करेक्ट है. प्रीति दुलास आंसर करेक्ट है. ऋषु आंसर करेक्ट है आपका. वेरी गुड ऋषु. ऋषु से मैंने आज बात भी किया दोपहर में. निशा, नहीं, निशा आंसर रॉन्ग है. निशा आंसर इज रॉन्ग. सो आंसर इज राइट. आंसर कौन सा राइट है? बोथ ए एंड सी. Both A and C. Well done, Aruna. Both A and C students, glycolysis as well as fermentation, they happen in cytoplasm and they do not need oxygen. Therefore, complete energy हम extract out नहीं कर पाएंगे. So अगर कोई आपको पूछता है glycolysis में ग्लूकोज का complete oxidation होता है क्या, आप आंसर दोगे no. ठीक है. fermentation में होता है क्या, आप आंसर दोगे no. Incomplete extraction of energy due to absence of oxygen, anaerobic pathways. Understood, students? Chalo, next question quickly. Protein is used for energy production. This statement is true or false? Protein is used for energy production. This statement is true or false? Chalo, batao students. Protein is used for energy production. True or false? True or false? True or false? Well done, Premraj, Sarthi. आपके आंसर्स तो आ गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आंसर्स आर रॉन्ग. सारथी, अनन्या, अमन दुबल आंसर्स रॉन्ग हैं. आंसर्स रॉन्ग हैं. ओके, वेल डन सुजल, योर आंसर इज करेक्ट. प्रीति आंसर रॉन्ग है. गौरव मलोरी, नाउ योर आंसर इज करेक्ट. सुजल गोगे आंसर करेक्ट है. अनन्या आंसर करेक्ट है. अब इस बार आंसर करेक्ट है. ये देखो, अब अभी स्टूडेंट्स बहुत लोगों ने क्विकली ए देख के आंसर मार्क कर दिया, बिकॉज हमारे टेक्स्ट बुक में सर लिखा है एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. यस, यू आर परफेक्टली राइट, बट यू विल हैव टू गो अक्रॉस ऑल 4 ऑप्शंस स्टूडेंट्स. सारे चारों ऑप्शंस आपको देखने पड़ेंगे, एंड चारों ऑप्शंस में से कौन सा परफेक्ट ऑप्शन है, कौन सा मोर अप्रोप्रिएट आंसर है, वो आपको जज करना पड़ेगा. ओके, सो ऑलवेज ट्रू, प्रोटीन्स आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. हमेशा ऐसा होता है क्या? नो. इफ इन केस ग्लूकोज अवेलेबल है, कार्बोहाइड्रेट्स अगर अवेलेबल है आपके बॉडी में, so proteins will not be preferred for energy production. Proteins are generally for the development of muscles, maintenance of muscles. बाकी भी बहुत सारे काम से प्रोटीन काम है, प्रोटीन के काम नहीं, काम है प्रोटीन्स के, like hormone development, enzymes, major role formation of enzymes, ये सारे काम प्रोटीन्स के. एंटीबॉडीज बनाना, कोविड के कोरोना के टाइम में आपने एंटीबॉडीज वर्ड बहुत बार सुना होगा, है ना. तो जो आपके एंटीबॉडीज हैं, इवन दे आर प्रोटीनेशियस, इवन दे आर प्रोटीन इन नेचर.
बट स्टूडेंट्स एनर्जी बनाने के लिए प्रोटीन का यूज बहुत लास्ट में किया जाता है. प्रिफरेबली बॉडी गोज फॉर कार्बोहाइड्रेट्स फॉलोड बाय लिपिड्स एंड देन प्रोटीन्स. बिकॉज अगर प्रोटीन्स का हम यूज करने लगेंगे एनर्जी के लिए तो आपके मसल्स है ना एकदम वीक हो जाएंगे एंड आप पतले से हो जाओगे. ठीक है. सो मसल dystrophy is the word which is used over there. Dystrophy will be observed, है ना, and muscle shedding will be observed. ओके स्टूडेंट्स, आप पतले हो जाओगे, आपके मसल्स प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होंगे, आपका फिजिक अच्छा नहीं दिखेगा. ओके, सो आंसर इज ये वाला देखो, ट्रू ओनली एंड ओनली इफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स आर नॉट अवेलेबल, only then yes the statement will be true, otherwise I will say statement will be false. तो कोई बी आंसर देता है स्टूडेंट्स, उसका भी आंसर रॉन्ग हो गया. क्यों? प्रोटीन कभी यूज नहीं कर सकते क्या एनर्जी प्रोडक्शन के लिए? कभी भी यूज नहीं करते हैं, गलत बात. यूज करते हैं बट कब यूज करेंगे? जब बॉडी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा. अंडरस्टूड है ना. जैसे आपको खाने में क्या पसंद है, तो कोई बोलेगा मुझे चाइनीज पसंद है, कोई बोलेगा मुझे पाव भाजी पसंद है ना. तो अगर मम्मी पूछती है आपकी कि आज क्या बनाओ, पाव भाजी बनाओ, चाइनीज बनाओ कि दाल चावल बनाओ सिंपल वाला, तो आप क्या प्रिफर करोगे? आप प्रिफर करोगे चाइनीज, है ना, मे बी. देन आप पाव भाजी, लास्ट में रखोगे दाल चावल. तो कोई ऑप्शन नहीं है अगर मम्मी, तो चलो अपन दाल चावल खा लेंगे आज. अंडरस्टूड. तो इस केस में भी ऐसा है, इफ आई हैव नो ऑप्शंस, कार्बोहाइड्रेट इज मोस्ट प्रिफर्ड. अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो आप जाओगे लिपिड्स के पास, लिपिड्स भी नहीं है तो आप बोलोगे अभी क्या करें, कुछ भी नहीं, तो एनर्जी तो बनानी पड़ेगी ना. सो वी विल यूज प्रोटीन्स, बट दैट इज इन द लीस्ट केस पॉसिबल. Okay, so C is the answer, students. Okay, glucose is completely oxidized in dash. Glucose is completely oxidized in dash, students. Quickly tell me the answer. Anaerobic, aerobic, both A and B and D. ध्यान से देखना options को. Please look at the option properly, students. Glucose is completely. Focus on the word completely. Focus on the word completely. Very good, Ananya. Shabash, Sarthi. करेक्ट आंसर्स हैं कृष पटेल, रिया, नितिन दुबे, प्रेमराज. आंसर करेक्ट है. अमन दुबल आंसर रॉन्ग है. अरुणा आंसर करेक्ट. सुजल आंसर करेक्ट. अर्चिता आंसर करेक्ट. सोहम आंसर करेक्ट. अमन दुबल आंसर इज रॉन्ग. यस स्टूडेंट्स, चेक करते हैं. ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन में. नो कंप्लीट ऑक्सीडेशन स्टूडेंट्स, कंप्लीट ऑक्सीडेशन कभी नहीं हो सकता. ठीक है. अगर एनारोबिक में कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, इसका मतलब क्या हुआ? ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो गया. सो क्या जरूरत आपको क्रेब्स साइकिल की? क्या जरूरत आपको ईटीसी पाथवे की? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो होने की जरूरत ही नहीं है. फिर अगर ग्लाइकोलाइसिस से सारा काम आपका कर दे तो आपको क्रेब्स साइकिल की कोई जरूरत नहीं, आपको ईटीसी की कोई जरूरत नहीं. बट वो होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स दैट surely glycolysis in bracket I'll imagine anaerobic pathway, anaerobic respiration is not capable enough to extract all the energy out of carbohydrates. That is glucose. Okay, so A is definitely not the answer. Anaerobic respiration, आप जहां भी anaerobic देखो स्टूडेंट्स तो ब्रैकेट में वहां पे ग्लाइकोलिसिस भी देखा करो. भले यहाँ पे नहीं दिया है बट मुझे दिख रहा है ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे. सो मेरी थिंकिंग वैसे जानी चाहिए. एनारोबिक मतलब ग्लाइकोलिसिस तो रहेगा या फर्मेंटेशन. अगर बॉडी के अंदर हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है, तो मैं बोलूंगा ग्लाइकोलिसिस. इन विट्रो चल रहा है तो मैं बोलूंगा फर्मेंटेशन, है ना. बॉडी के बाहर चल रहा है तो मैं बोलूंगा फर्मेंटेशन की बात कर लूंगा. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट बी ऑप्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन. डेफिनेटली एरोबिक रेस्पिरेशन में जरूर के जरूर होगा कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, बिकॉज ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी, पूरा का पूरा ग्लूकोज टूट जाएगा. देन ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी नॉट पॉसिबल बिकॉज ए इज नॉट द करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी ईटीसी पाथवे और ईटीएस पाथवे, बहुत लोगों ने ऑप्शन डी भी मार्क किया है. बट स्टूडेंट्स आपने ये भूल गए कि डी ऑप्शन के साथ अगर आप जाते हो तो डी ऑप्शन आपको क्या दे रहा है? पता है डी ऑप्शन आपको क्या देता है? डी ऑप्शन आपको बता रहा है कि फाइनल स्टेज ऑफ ऑक्सीडेशन वहां पे कंप्लीट नहीं होता, स्टार्ट होता है ग्लाइकोलिसिस से, एंड होता है ईटीसी. So ETC is not the answer. Your answer has to be a general term which is aerobic respiration. Aerobic respiration तीनों चीजों को कवर कर रहा है, ग्लाइकोलिसिस को भी कवर करेगा, क्रेब्स साइकिल, ETC. इन तीनों को एक साथ मिला के मैं बोलता हूँ aerobic respiration. I hope you have understood the answer. Yes students, raise your hand if you have understood the answer. Raise your hand, raise your hand, raise your hand. Everyone raise your hand if you have understood the answer. If you have understood the answer, raise your hand. Shabash. वेरी गुड नौशीन, क्या बात है. पंकज पाल, यस. अभिजीत, शाबाश. ओके चलो स्टूडेंट्स, लेस देन 1 minute रिमेनिंग. क्विकली, फैटी एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू डैश. अगर सेशन खत्म हो जाए स्टूडेंट्स तो यू हैव टू जॉइन मी बाय यूजिंग द सेम लिंक एंड पासवर्ड. ओके, यू हैव टू जॉइन मी बाय यूजिंग द सेम लिंक एंड पासवर्ड इफ दिस सेशन एंड्स.
चलो, फैटी एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू डैश टू गिव एनर्जी। फैटी एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू डैश टू गिव एनर्जी। सो आपको ये तो फ्लो चार्ट दिया है स्टूडेंट्स आपके पेपर में। हाँ, चलो इसका आंसर बता दो, फिर डिस्कशन करते हैं अपन। नेक्स्ट सेशन डिस्कशन करेंगे, ठीक है? आप वापस ज्वाइन हो, फिर डिस्कशन करेंगे। फैटी एसिड्स आर कन्वर्टेड टू डैश टू गिव एनर्जी। सो पहले वाले का आंसर तो था बी। सेकेंड वाले का आंसर है ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। आपके बुक में